Aisha, wife of Harun, 40 years old, married since 16 years. It is first 40 and 40 years old. Ji, ठीक है. married since 16 years. It हाँ. is consecutive and first marriage of both partners. हम्म. She is educated till 8th class. Her last menstrual period was on 16th of May 2021, which makes her expected date of delivery 23rd of February 2022. And today she is 32 plus 3 weeks of gestation. She is resident of Sarjani town, Gravita 6, para 1 plus 4. Last born 12 years back via lower segment cesarean section. पैरा And 1+4 है ये. J. ठीक है. Last child 12 years born, 12 years back, last child born and via lower segment cesarean section. And last miscarriage was 1.5 years back. She is housewife. Her blood group is A positive. She is known case of essential hypertension after the birth of her first child and was taking tablet Cardix 5 milligram half OD off and on. क्या ले रही है? सॉरी, आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी मिस हो रही है. मैम कार्डिक्स ले रही है. ठीक है. हाफ ओडी लेती है लेकिन ऑफ एंड ऑन, कभी लेती है कभी नहीं. ओके. Her date of admission was on 30th of December 2021 via emergency with complaints of 8 months of gestational amenorrhea with raised blood pressure, headache, and dizziness since 1 week. My patient is known case of hypertension since after the birth of her first child 12 years back, for which she was prescribed tablet Cardix 5 milligram half OD. But she was not very much आप बेटा compliant. अपना माइक जरा सही करें क्योंकि बीच में आवाज आपकी मिस हो जाती है. जी जी. मैम अब आ रही है सही? जी जी. ठीक है. She was not compliant with the medication and was not checking her blood pressure regularly. She did not had any preconceptional counseling or any and organ evaluation done when she entered in pregnancy. She had regular menstrual cycle and was not using any method of contraception. It was her unplanned and spontaneous conception when she was 2 months overdue. She visited to doctor where her ultrasound was performed, which showed a single alive intrauterine pregnancy of 9 weeks, but she does not correlate it with the calendar month. She also had excessive nausea and vomiting, for which she was given some medication, but she is unaware of the name. There was no fever, flu, or rash. She does not have any burning micturition, vaginal discharge, or bleeding. At that time, her blood pressure was also checked, which was normal according to my patient. And she was prescribed only tablet folic acid, but no tablet Ascard or anything for the blood pressure was given at that time. Her blood and urine tests were performed, which was normal. She started feeling fetal movements at 6 months of gestation. Then she visited her second visit to the doctor, where her anomaly scan was done, which was normal, but oral glucose tolerance test was not done. Her blood pressure was checked at that time, and which was found to be raised, and but she does not recall the reading. For that, she was given tablet Aldomet, one tablet TDS, but strength is not known to her. Also, some iron and the calcium formulation was given. There was no complaint of chest pain, headache, blurring of vision, excessive nausea, vomiting, epigastric pain, flank pain. There was no generalized edema, decreased urine output, abnormal vaginal discharge, or bleeding. She does not have any complaint of increased urine, thirst, or increased appetite, no heat or cold intolerance, no easy fatigability or shortness of breath. There was no itching all over the body, but she had some rash at the right hip, which was intense which was with sudden in onset with intense itching on it, and for which she was prescribed tablet ointment Terbiderm, Clobiderm, and Betnovit. But still, she does not the itching does not resolve. There is no family history of same rash or any allergic history in the any itching in the family. No history of any food or drug allergy in herself. She does not have any joint pain or photosensitivity. Her perception of abdominal girth was not normal, according to my patient. She feels that her abdomen is not growing properly along with the gestational age, but she was satisfied with the fetal movements. She received 2 doses of tetanus toxoid, and her growth scan was done in the next antenatal visit, which showed single viable fetus, which was corresponding to gestational age, and the placenta was normal. The amount of liquor was also adequate according to her, as she was told by her doctor.
She was compliant with the aldomet and hematinics, but not checking her blood pressure at home. When she visited in the OPD again a week back, her blood pressure, her tablet aldomet was increased from one tablet TDS to two tablets TDS. At that time, she was feeling headache and blurring of vision and dizziness. For these complaints, she was admitted via emergency. And here her blood ये डोज उसकी इंक्रीज कब की थी? मैम एक हफ्ते पहले इंक्रीज की, और उस एक Okay. हफ्ते जब वो घर गई तो उसका हेडेक और डिजीनेस स्टार्ट हो गई थी उसको। ओके ओके। तो लेकिन उसने घर पे चेक नहीं कराया था ब्लड प्रेशर। फिर then she again visited to emergency. Here her blood pressure was checked, which was 160 by 110. So she got admitted and few injections and drips were given to her, and blood and urine test has been sent. But she is not told to collect urine in any jar, or she is unaware of the reports of latest blood tests. In hospital, her blood pressure has been checked 4 to 6 times a day. CTG is doing 2 times a day, and she has been given a fetal kick count chart. Regarding her obstetrical history, she is para 1+4. All were spontaneous conception. Her first child was born 12 years back and was delivered by emergency lower segment cesarean section under spinal anesthesia due to intrapartum raised blood pressure. But she does not have any history of fits, headache, or unconsciousness. She is denying of any antenatal or postnatal complication. Just intrapartum में raise हुआ था blood pressure, ma'am. Rest 4 pregnancies were early trimester spontaneous miscarriages at 1 to 1.5 months of gestation, not followed by evacuation of retained product of conceptus, and no histopathological testing was done. Her menarche was at the age of 13 years. After that, she had regular cycles of 7 by 28 days with no clots, no dysmenorrhea, no dyspareunia, no intermenstrual, and the postcoital bleeding. Couple never practiced any method of contraception. Pap smear was never taken. In medical history, she is a known case of hypertension since 12 years, as discussed previously, but there is no ischemic heart disease, diabetes, thyroid dysfunction, venous thromboembolism, or stroke, no any bleeding or clotting disorders, or any chronic kidney disease. She has only one cesarean section. Rest surgical history is not significant. In drug history, she is taking tablet aldomet, 2 tablets TDS, and iron and calcium. Her sleep, appetite, and bowel habits are normal with no history of weight loss. Blood transfusion history is not significant. There is no history of diabetes, hypertension, chronic kidney disease, ischemic heart disease, asthma, tuberculosis in the family. Husband is a shopkeeper. Needs of life are fulfilling with difficulty. A young lady of average height and build, lying comfortably on bed, well oriented with time, place, and person, and her BMI is 26 kilograms per meter square. Her blood pressure was 130 by 80 millimeter mercury. Pulse was 80 beats per minute. Temperature was 98 degree Fahrenheit, and respiratory rate were 18 breaths per minute. There was a butterfly rash over her face, occupying both her cheek and nasal bridge. Pellar was positive, but there was no jaundice, clubbing, koilonychia. Orodental hygiene was satisfactory. No accessible lymph nodes or axillary lymph nodes were palpable. Thyroid looks normal on deglutition. Both breasts were bilaterally symmetrical with normal nipple and areola. No scar or visible pulsation seen. No lump palpable in any quadrant of the breast. Chest was clear bilaterally with normal vesicular breathing. S1 and S2 were audible and with no added sound in the cardiovascular examination. On her deep tendon reflexes were normal and the clonus was negative. There was no edema, pedal or sacral edema. रिफ्लेक्सेस का आपने क्या बताया? मैम नॉर्मल थे और क्लोनस किया था तो वो नेगेटिव था. डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आप बता रहे हैं? जी मैम, ये किया था, ट्राइसेप का किया था और पटेलर रिफ्लेक्स किया था. ओके, दोनों नॉर्मल थे, एग्जैजरेटेड नहीं थे. हाँ मैम, जो है वो उसका क्लोनस नेगेटिव था. और नो pedal or sacral edema. Or abdominal examination, abdomen was protuberant due to gravity uterus, umbilicus centrally placed inverted, no scar or visible pulsation seen. Striate gravidarum was present and a scar of healed phalangeal incision of previous lower segment cesarean section was seen. Height of fundus was 32 centimeter. Lie was longitudinal. Presenting part was cephalic,
and amount of liquor was seems to be adequate. Estimated fetal weight was 2 to 2.5 kilograms. Amount of liquor was Adequate, ma'am. okay. जी. Estimated weight was 2 to 2.5 kilograms. ठीक है, एक मिनट जरा मुझे एक कॉल अटेंड कर लूं मैं. जी 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 मैम. जी शुरू करें. जी एस्टिमेटेड फीटल वेट तक आपने बता दिया. जी जी मैम, ठीक है, कंप्लीट हो गया. चलो समराइज करें आप इसको. 40 years old, married, 40 years old, is in consanguineous marital relationship since 16 years, gravitas 6, para 1 plus 4, last born 12 years back. After that, she is known case of hypertension. Her last miscarriage was 1.5 years back. She admitted at 32 plus 3 weeks of gestation with raised blood pressure, headache, and dizziness. Since 1 week, she is taking tablet Aldomit, 500 milligrams TDS. She has a rash at the right hip, not resolving with steroid creams. On examination, सॉरी, ये अभी लास्ट सेंटेंस आपने क्या बताया? मैम रैश है, एक इचिंग के साथ रैश है उसके राइट हिप पे. ठीक है, ओके. इट इज नॉट रिजॉल्विंग विद स्टेरॉइड क्रीम्स. और जो है समरी, वैसे समरी ही होना चाहिए. आगे थोड़ी सी समझने के डिटेल डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हो जाती है एज पर समरी की जो वो होती हैं, एक जो पैटर्न होता है उससे ये जरा ज्यादा है. इसको ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड. तो इसमें डिटेल बताने की जरूरत नहीं होती. जस्ट एज, gravidity and parity, duration of pregnancy, and the problem with which she has presented, and what particular findings. मतलब आप इसमें ये भी कह सकते हो कि इसका now the blood pressure on treatment is 130/80. Nothing more significant, nothing additional significant findings on general physical examination, and fundal height correspond to the gestational age, duration of gestation. ठीक है, इस तरह से आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. Now, in this patient, what are the risk factors which you have identified so far? Ma'am, she is known case of essential hypertension. And now she is feeling dizziness and headache. So it is maybe superimposed preeclampsia. अभी डिजीनेस है और एसेंशियल हाइपरटेंशन का ये केस है. जी, ये तो केस की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं. आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को रिपीट कर रहे हो. रिस्क फैक्टर्स मींस कि जो उसमें आपने अभी तक रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, जो उसके करंट इश्यूज हैं या प्रॉब्लम्स हैं. हम प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को दोबारा इसमें रिपीट नहीं कर रहे सो फार. वो तो उसकी उसमें हिस्ट्री में आ गया ना. लेकिन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसमें क्या क्या है? मैम एक एसेंशियल हाइपरटेंशन आपने बता दी. एक मैम बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री है, रिपीटेड मिसकैरेजेस हैं, एक एनीमिया है, और मैम ये रैश है, और प्रीवियस वन स्कार. अभी हम सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद की बात कर रहे हैं. अभी हमने इन्वेस्टिगेशन को टच नहीं किया. सो हाउ यू हैव सेड दैट शी हैज एनीमिया? वाज शी ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन? जी जी, यस, शी वाज पेल मैम. क्योंकि पेलर का आपने बताया नहीं है ऐसा. मैम शी वाज पेल और नॉट? ओके जी, बताया था. तो क्लिनिकली एनीमिया, एविडेंट एनीमिया जो है वो इसका है. और इसमें क्या रिस्क फैक्टर है ऑन हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? प्रीवियस वन स्कार. हाँ, प्रीवियस वन स्कार. और
मैम consanguineous marriage. अच्छा, और और रैश जो ये राइट हिप पे बता रही हैं, और जो रैश है मैम राइट हिप पे रैश. राइट हिप पे रैश है. जी. राइट हिप पे जो रैश है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? मैम कोई स्किन एलर्जी हो रही होगी इनको. तो इसमें वो रिस्क फैक्टर कहाँ से आ गया? हाँ नहीं मैम, आपने ये एक चीज का जिक्र किया था ऑन एग्जामिनेशन, बटरफ्लाई रैश. हाँ हाँ मैम फेस व्हाट पे डू यू ऐसे. मीन बाय दैट? जी जी मैम, इट शोज दैट पेशेंट में हैव सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस. बटरफ्लाई रैश की लोकेशन क्या थी, कहाँ होता है ये बटरफ्लाई रैश? मैम चीक पे होता है और नेजल ब्रिज पे होता है, इनका ठीक है, एग्जैक्टली तो ऐसे ही इसका था. बटरफ्लाई रैश था. जी था. ओके, तो रैश ऑन हिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, उसकी सिग्निफिकेंस है. व्हाट एल्स मोर इम्पोर्टेंट? बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप मिस कर रहे हो. मैम रिपीटेड मिसकैरेज. नहीं, वो तो आपने बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में बता दिया ऑलरेडी. जी. डू यू थिंक हर एज इज आल्सो इम्पोर्टेंट? एज. Age मैम of patient, she is 40 years of age. Do you think this is clinically significant? yes ma'am, she is till now, up till now she is only para 1. No, I am talking about age of the patient. She is 40 years of age, as said by you. जी. Age of patient इसमें significant है या नहीं है? मैम लेकिन अगर एसएडी के लिए सोचे तो मैम वो तो अर्ली टीन एजर्स में या इस तरह होता है. 40 इयर्स तो लेट हो जाता है इसकी बात एसएडी के करिए. इसकी आपकी आवाज में ना वो है, काफी वाइब्रेशंस बहुत हैं, इस वजह से बात क्लियरली समझ नहीं आता. हाँ जी, बताइए, दोबारा से बताइए. मैम अगर एसएडी के लिए देखें तो एसएडी तो अर्ली एज में ज्यादा होता है, जैसे टीन एजर्स. एसएलई की बात कर रही हैं आप? जी जी. और बाकी चलो एसएलई को अगर हम छोड़ भी दें फॉर द टाइम बिंग, तो एज अदरवाइज उसकी ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या है? Will you call it as, will you label it as a favorable reproductive age? No ma'am, no. Then do you think this is important? इसकी age Yeah. 40 years है. जी जी, chances of congenital anomalies are more after 30 years of age. 30 And years what of age. else? Apart from anomalies, what else is important in this patient as regard to her age? समझ नहीं आ रही मैम और रीजन. This you all must know because ये फॉर एज, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर एज ही है, फिर उसके बाद उसकी क्रॉनिक हाइपरटेंशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री और प्रीवियस वन स्कार्ड यूट्रस. और इसके अलावा ये अभी तक जो हैं इसके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद के रिस्क फैक्टर, आप इसको यहाँ तक फुल स्टॉप कर दो. जी. ठीक है. द नेक्स्ट विल कम the risk factors as identified on investigations. So age of the patient will come on the top of list. क्योंकि age of patient सिर्फ anomalies के हिसाब से ही important नहीं है, बल्कि ये otherwise जो comorbidities हैं, उसकी जो medical complications हैं, उसकी जो repeated miscarriages हैं, these all may be linked with the increased age of the patient. age इस लिहाज से उसकी obstetric significance इस लिहाज से बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि reproductive outcome is not that favorable at this age. So now coming to the workup of this patient, जो evaluation आपने अब इसकी करनी है, how you will proceed for the investigation in this patient? Ma'am, I need her blood group and RH factor. Her Blood group and RH factor. जी ma'am, it was A positive. Okay. Her complete blood count, in which I want her hemoglobin, which was 9.5 grams per deciliter. Hemoglobin was 9.5. 9.5. Okay.
Her white blood cell count was 7,000 and platelets were 212, Hmm. 2,12,000. So there was no other abnormality on CBC except for reduced hemoglobin. ऐसा ही है जी ना? जी. Okay. What else? So ma'am, I need her peripheral smear and retic RBC indices. ठीक है, In वो तो CBC में ही हो जाता है. जी मैम. तो CBC में ही हो जाएगा. पेरिफेरल स्मीयर की रिपोर्ट क्या थी? मैम hypochromic microcytic anemia. Okay. और And all indices were low, so maybe most likely iron deficiency anemia. So I need her serum ferritin levels, which were not available. ठीक है, सीरम फेरिटिन हो गया. और Ma'am, I need her hepatitis B and surface वायरल antigen. सीरोलॉजी. ठीक जी है. ma'am, all were negative. COVID PCR, anti-HCV, Okay. everything was normal. Oh, negative. ठीक है. I want her fasting blood sugar, which was 89 milligrams per deciliter. It was 89. okay. Ma'am, I want her, ma'am, due to repeated miscarriage, I want her rubella IgG. Rubella IgG due to repeated miscarriages. जी. इसका क्या रोल है? Rubella IgG का क्या रोल है repeated miscarriages में? Ma'am, I will check whether the immunity against rubella has been developed or not. इससे I can rule out about torch infections. ओके, आपका टेस्ट तो ठीक है. इसको बाद दफा बेसिक स्क्रीनिंग में करवाया जाता है इन ऑब्स्टेट्रिक पॉपुलेशन. कुछ सेटअप्स में ये रूटीन में होता है, लेकिन जो आपने इसकी जस्टिफिकेशन दी है वो सही नहीं है. दिस इज नॉट फॉर रिपीटेड मिसकैरेजेस एट ऑल, because it cannot cause repeated miscarriages. For one time, for one abortion, it can be a reason. लेकिन हमारी जैसे 99% of population of our country and in most of the country is rubella immunized due to MMR vaccination. जी. तो इसमें rubella IgG का status, just to know that, is okay, is acceptable. आप उसका रूबेला इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखना चाहते हो बाय मेजरिंग बाय असेसमेंट ऑफ द रूबेला आईजीजी एंटीबॉडीज, लेकिन जस्टिफिकेशन आप ना दें क्योंकि इसका इसमें कोई रोल नहीं है. व्हाट एल्स? Okay, ma'am, I want her urine analysis in which I want to see microscopy and biochemistry. Everything was normal in urine analysis except protein was +2. Except Protein was +2. protein was +2. Okay. जी ma'am, I want her LFTs and RFTs which were awaited. I want her I asked her about 24-hour urinary protein collection. She denied. Then there was protein creatinine ratio was also not done, but I want it. तो आप ये दोनों टेस्ट कराओगे, 24 आवर्स प्रोटीन्स भी और प्रोटीन क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी? No ma'am, I will just do protein creatinine ratio. Spot protein creatinine ratio. And or ma'am, I want her, as she is chronic hypertensive, so I want her ECG and echocardiography and fundoscopy. ठीक है. और बस. और what were the findings on her cardiovascular system examination? Ma'am, according to my findings, it was there was no edit sound. It was all normal. Ji, as per my auscultation. So why you want to have ECG and echo in this patient? Ma'am, as her hypertension is has been crossed more than 5 years, so after 5 years we recommend to do ECG and echo. But to see the what specific changes on ECG will show the hypertensive effect? Ma'am, in chronic hypertensive patients, there is left ventricular hypertrophy. So there will be changes in the ECG according to that. Okay, left ventricular hypertrophy. Ji. What changes occur physiologically during pregnancy? Ma'am, in the pregnancy cardiac system which are reflected onto ECG.
मैम प्रेगनेंसी में भी जो है वो एपेक्स बीट डेविएट हो जाती है लेफ्ट Why? फिफ्थ Why? इंटरकॉस्टल Why this is shifted to left side? due to increased cardiac output and workload on the heart, hypertrophy of the ventricles. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी हो जाएगी, जी ठीक है। जी और इसके अलावा ईसीजी में क्या चेंजेस फिर आपको नजर आएंगी? PQRST मैम PQRS शायद मैम टी वेव इन्वर्जन दिखेगी। इससे पहले कि आप ईसीजी का इस पेशेंट में मेंशन करें, दो हर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन इज नॉर्मल, शी इज नॉट गिविंग एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ईसीजी और एको की रिपोर्ट्स, चाहे गाइडलाइन आपको ये कहती हैं कि इसको करवा लें जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, but still you have to justify it, and that how a normal physiological change in pregnancy can overlap the normal changes as identified on ECG and echo. This all you must know कि ECG पे नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आते हैं और इसके अलावा एको में क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। वो प्रोबेबली बेटा आपका माइक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें काफी है, वाइब्रेशन है और शोर है इसमें काफी। माइक म्यूट कर लें डॉक्टर माजमी आप। मैंने फोन से ही लॉगिन किया हुआ है, मैं हैंड फ्री लगाती हूँ, शायद उससे सही हो जाएगा। नहीं आप म्यूट कर लें, जब मैडम बोल रही हो तो आप म्यूट कर लें। सो सॉरी। ओके ठीक है, तो इसको ईसीजी और एको की बात करने से पहले आपको सारी इसमें पता होना चाहिए कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होती हैं। Only then you can have the significance and only then you can interpret the changes on ECG and echo. ये सिर्फ उसी सूरत में आप करोगे। तो लेकिन अगर पेशेंट फर्ज किया कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स बताता है या उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी चीजें सजेस्टिव हैं और यू आइडेंटिफाई समथिंग जो डिविएटेड है फ्रॉम द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो उसमें डेफिनेटली आपका ये बोलना बनता है, ठीक है। लेकिन आपने अगर इसको बोलना भी है कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन का क्या इफेक्ट होता है ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, विच डेफिनेटली समटाइम्स जो है वो उसको हाइपरट्रफी कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी हो सकती है, कार्डियक साइज एंड लार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल उसके साथ ओवरलैप करती हैं जो नॉर्मली भी प्रेगनेंसी में हो सकता है इस एज पे। इस एज पे क्या बल्कि यंग एज में भी ये सारी चीजें हो रही होती हैं। सो इसलिए ये चीजें आप लोगों को असबार सारी याद होनी चाहिए। बेसिक चीजें, ये बेसिक चीज है कि नॉर्मली प्रेगनेंसी में बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती हैं और वो हमें कैसे नजर आती हैं, कैसे हम उनको डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन पे हम कैसे हमें जो है वो इवन आपकी सारी लैब वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। तो इवन जो इन्वेस्टिगेशन पे नॉर्मली क्या क्या प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं वो सारे के सारे बेसलाइन आपको पता होने चाहिए। तो इसमें आपने अब ईसीजी और एको की हमने बात कर ली। फंडोस्कोपी फॉर व्हाट? इज शी गिविंग एनी आई सिम्पटम्स? नो मैम, शी वाज प्रॉब्लम है मैम, शी वाज नॉट गिविंग एनी सिम्पटम ऑफ एनी सिम्पटम्स रिलेटेड टू आईज, बट ओके। एंड आर ऑल दीज चेंजेस जो आपने मुझे बताया ईसीजी एको और फंडोस्कोपी पे, आर ऑल दीज चेंजेस रिलेटेड विद द गुड और बैड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन? हम क्रोनिक हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं। यस मैम, रिलेटेड विद गुड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन? yes ma'am, if as from her history we know that she was not compliant with the medication, and she entered in the pregnancy without an organ evaluation. So in pregnancy maybe her condition become aggravated and become worsen. हाँ, लेकिन इसमें देखो अब पेशेंट बात दफा ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी ब्लड प्रेशर दरमियान में चेक नहीं कराया होता, जो कहते हैं कि हमने मेडिसिन रेगुलरली नहीं ली या बिल्कुल नहीं ली। सो हाउ इनडायरेक्टली यू कैन इंक्वायर अबाउट द गुड और बैड कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन? ऐसे पेशेंट से फिर आप किस तरह पूछ सकते हो, कैसे आप असेस कर सकते हो कि इसका कंट्रोल सही था या नहीं था? By asking the symptoms of hypertension. If the patient is giving symptoms now at this blood pressure,
she must be having the symptoms with the bad control of hypertension as well. तो इसलिए आप उसके सिम्टम्स पूछोगे कि अगर उसने फर्ज किया मेडिसिन नहीं ली और वो कहती है मैंने किसी डॉक्टर को भी चेक नहीं कराया, घर पे भी चेक नहीं किया, फिर आप उससे सारे सिम्टम्स हाइपरटेंशन के पूछोगे कि अच्छा क्या उस टाइम पीरियड में उसको हेडेक हुआ, कोई आई साइट का प्रॉब्लम हुआ, या कोई एपिगैस्ट्रिक पेन, कोई ऑफ एंड ऑन वॉमिटिंग या मसल स्ट्रेचिंग, मसल क्रैम्प्स, ये लाइक ऑल दीज। तो ये सारी चीजें आप उससे पूछोगे जिससे आपको अंदाजा होगा कि यस शी माइट बी हैविंग ऑफ एंड ऑन इरेटिक हाइपरटेंशन या परसिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो ये उसको पूछने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। ठीक तो है फिर हम मैम। फंडोस्कोपी की बात कर रहे थे। हाँ जी बताइए। मैम ये कि अगर इको ईसीजी हमने करा भी लिया तो हम कार्डियोलॉजिस्ट से उसकी ओपिनियन ले सकते हैं कि करवाएं ही नहीं, अगर मोर देन 5 इयर्स भी जो भी ड्यूरेशन है करवाएं ही नहीं बस। जो हाइपरटेंशन होती है ना, यूजुअली हाइपरटेंशन बेसिकली डोमेन है ऑब्स्टेट्रिशियन का। समटाइम्स द ऑब्स्टेट्रिशियन आर ऑल अलोन टू मैनेज द पेशेंट। और उसके बाद सेकंड डोमेन आता है मेडिकल स्पेशलिस्ट का। कार्डियोलॉजिस्ट इसमें एंटर नहीं होता प्राइमरीली unless we find some changes on history and examination initially, and as per examination finding फिर हम आगे proceed करते हैं towards the specific investigation like ECG and echo। तो अगर उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन हमें हो जाती है किसी प्रॉब्लम की, तो नेचुरली फिर उसमें कार्डियोलॉजिस्ट भी उस पेशेंट की के केयर पाथवे में एंटर हो जाएगा। तो बेसिकली ये होती तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ही है, लेकिन इसमें प्राइमरीली एक ऑब्स्टेट्रिशियन और एक फिजिशियन का ही रोल होता है, मेन रोल जो प्राइमरी रोल है। उसके बाद सेकेंडरी रोल आता है कार्डियोलॉजिस्ट का। अगर कोई इंडिकेशन हो तो हम अपने कितने पेशेंट हाइपरटेंशन वाले केसेस को हम ज्यादातर तो खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं। ऐसा तो बहुत कम होता है कि हम उसमें फिजिशियन को इन्वॉल्व करें, वो तब होता है जब कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन अचीव ना हो, और इफ वी फाइंड सम अदर कॉम्प्लिकेशन, कोई कोमॉर्बिडिटी उसके साथ हो, तो उसको हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट को हम कितने लोग हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट को हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में एंटर करते हैं? हम नहीं करते, हम बेसिकली नहीं करते जब तक हमें उसकी कोई इंडिकेशन या कोई वजह नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है। तो आपने वो बात करनी है जो आप बेसिकली जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक है। ठीक है, ऐसे हाइपरटेंशन अगर ये 10 to 12% इसकी है, मतलब हाइपरटेंशन का अगर रिस्क है, और ज़्यादा एसेंशियल हाइपरटेंशन इज लेस एज कंपेयर टू जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, तो फिर भी ये कार्डियोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हम इस तरह हर केस में कर सकते ना। ठीक है, चले जी अब आगे चले। हम फंडोस्कोपी की बात कर रहे थे कि फंडोस्कोपी का क्या रोल है इस पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट में। मैम एनी आई सिम्टम्स? yes ma'am, right now she does not have any eye symptoms. For now I will not go for her fundoscopy. और अगर मैं कहूं कि इसमें करवानी है और क्यों करवानी है, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? Ma'am, because her pregnancy can aggravate the pre-existing retinopathy. So as she does not have any examination before, so we will go for fundoscopy now. What specific changes you can see on fundoscopy in the cases like this, जो कि 40 years है और essential hypertension के साथ है for last 12 years? Ma'am, there may be retinal hemorrhages and hard exudates, and ma'am, the ophthalmologist knows better, but what I know is only लेकिन जो मोटी सी फिगर्स होती हैं वो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे डायबिटिक्स में हम करते हैं उसमें भी पता होता है कि क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। दो आप इसको खुद तो नहीं कर रहे होते, लेकिन बीइंग द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू दीज पेशेंट्स, आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें क्या चेंजेस हो सकती हैं। जी मैम, वेस्क्यूलर, हाँ जी हाँ मैम, वेस्क्यूलर टॉर्चुओसिटी होती है, हार्ट एक्सुडेट्स होते हैं और रेटिनल हेमरेजेस होते हैं इसमें। अच्छा चलो अब हम आगे चलते हैं फंडोस्कोपी को छोड़ के। अब और इसके अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है इस पेशेंट में?
जी मैम, अल्ट्रासाउंड्स, आई नीड हर अल्ट्रासाउंड्स एंड डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अलावा, अल्ट्रासाउंड तो एक है ना, अलग से चीज है। इसके अलावा उसके मैम एज हर आपने जो प्लेटलेट काउंट, एग्जामिनेशन इसका किया है उसके हिसाब से और इसकी हिस्ट्री के हिसाब से कुछ और चीजें इसमें बनती हैं? जी जी मैम होती हैं। इनका मुझे एसएलई का वर्कअप, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का वर्कअप करवाना चाहिए, लेकिन एज शी इज़ प्रेग्नेंट तो अभी आई विल वेट फॉर हर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर 3 क्यों months डिलीवरी, of delivery, प्रेगनेंसी से क्या होता है? मैम द लेवल्स विल प्रेगनेंसी बी, में आप नहीं करा सकते हैं। मैम लेवल्स सही नहीं आएंगे उसके, जो भी किस चीज के लेवल सही नहीं आएंगे? एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, जैसे एंटी ल्यूपस एंटीकोगुलेंट और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज के। इसके अगर अलावा मैं भी हम कुछ करवा सकते हैं क्या, विच इज मोर स्पेसिफिक? to rule out SLE? Yes, for some autoimmune problem, because you are giving me the finding of butterfly rash which is very specific for SLE, और जी। इसके अलावा आप इसको chronic hypertension का problem है, and one more very important finding on investigation, and what is that? वो क्या है? मैम तो हो गया प्रोटीन यूरिया तो। Starting from the beginning, repeated miscarriages, 40 years, जी essential hypertension for last 12 years, ठीक है? जी फिर जी। एग्जामिनेशन पे बटरफ्लाई रैश, ठीक है? फिर उसके बाद इफ वी कम टू द इन्वेस्टिगेशंस, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है प्रोटीन यूरिया 2+। जी इसकी अगरचे मजीद फर्दर क्वांटिफिकेशन आप अभी रिपोर्ट्स आर स्टिल अवेटेड या हुई नहीं है, लेकिन प्रोटीन यूरिया 2+, जी ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे चले जाओगे, ठीक है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का वर्कअप आपको करवाना बनता है। नाउ एज यू से दैट एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज एंड एंटी कार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज, उनके लेवल्स अफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आई एग्री टू सम एक्सटेंट, नॉट फुली, क्योंकि अगर एब्सोल्युटली इंक्रीज लेवल हो तो वो इतना उस पर ग्रॉस फर्क नहीं पड़ता। जो माइल्डली रेज्ड होते हैं वो उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं। But what other test you can do to rule out autoimmune process which are specific and not affected by the physiological changes of pregnancy? To rule जी out autoimmune disorder. मैम एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी एंड एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ये इससे भी सिंपल टेस्ट। डबल डीएनए का कुछ था मैम, याद नहीं आ रहा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या एएनए भी आप करवा सकते हो। ये ज्यादा इफेक्ट नहीं होते प्रेगनेंसी से, ये स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं। और इसके अलावा भी एक टेस्ट है जो आप करवा सकते हैं, बीटा-2 ग्लाइको, जी 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 हाँ, वो जी ग्लोबुलिन जी है, जी जी, वो भी बीटा-2 specific माइक्रोग्लोबुलिन। मार्कर है जो कि आप इसमें करवा सकते हो। तो अगर आपके पास अगर एक चीज अफेक्टेड होती है प्रेगनेंसी से, तो बाकी तो स्पेसिफिक मार्कर्स हैं, वो आप यकीनन आपको इसमें करवाने चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको रूल आउट करना जरूरी है, ठीक है? ओके ओके। चलो जी, अब हम इसमें और कुछ टेस्ट की जरूरत है। ये तो आपने, ये हो गया, हमने इसका भी वर्कअप कर लिया। और क्या उसमें और किसी टेस्ट की जरूरत है इस पेशेंट में? मैम अल्ट्रासाउंड इसके, ओके, अल्ट्रासाउंड फॉर व्हाट? dating scan in which she was 9 weeks and cardiac activity was positive, single intrauterine pregnancy was there. Ma'am, anomaly scan was normal. Scan तो आपके पास अवेलेबल है, and by that also she is at 32 plus 3 weeks, ऐसा ही है ना? जी जी जी। ठीक है। What else? Dating scan हो गया, और her anomaly scan which was normal, but Okay. at that time it was not present. She told me that it was normal. ठीक है, और Ma'am, her recent scan in which I want to see her biometry, amount of lie and presentation of fetus and estimated weight. Ma'am, What do it was corresponding. okay. What do you anticipate by your examination finding? Fundal height was 32 centimeter, जिसको वैसे सिम्फिजियो फंडल हाइट का लफ्ज बोलना चाहिए rather than fundal height. That was 32 centimeter. जी
तो जी मैम, it was corresponding with the dates. Yes. this exactly correlates with the duration of pregnancy. So probably the जो है वो fetal growth is okay. There is no problem in that. जी But suppose on ultrasound everything is okay, corresponding to 32 weeks of pregnancy, Leica is okay, and estimated fetal weight again is 2.3 kg. Suppose हम assume कर लेते हैं. तो अब इसमें आपने आर यू सेटिस्फाइड विद दिस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो मैंने आपको बताई है, या इसमें और भी कुछ आप मैम? हाँ, I want to do a baseline Doppler on the safe side, just as mother's perception for abdominal girth was not satisfactory. So I will do a Doppler ultrasound to see uteroplacental insufficiency, to rule out any uteroplacental insufficiency. बेसलाइन डॉपलर क्यों? जब सारा कुछ ठीक है तो फिर उसमें डॉपलर फ्लो स्टडीज की क्या जरूरत है? मैम ये एक तो मदर का खुद का परसेप्शन था कि मेरा बच्चा सही ग्रो नहीं हो, मुझे पेट सही भरता नहीं महसूस हो रहा, और दूसरा मैम ये established. But till now you have completed with your examination and you are satisfied that fetal growth is okay and is consistent with the duration of pregnancy. Then why you want to have the Doppler flow studies in this case? मैम जो मेरे दिल में उस वक्त आया था कि इसलिए कि इनको एस्कार्ड भी स्टार्ट नहीं हुई थी और क्रॉनिक हाइपरटेंशन भी है। मैम क्रॉनिक हाइपरटेंशन है इनको, और कोई पहले से इन्होंने कुछ एस्कार्ड वगैरह स्टार्ट भी नहीं हुई थी। क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो है, बट द मोर important justification for this Doppler flow would be the recent requirement for increase in the dose of antihypertensive. ओके ठीक है, अभी एक हफ्ता पहले जो है वो उसकी जो है वो हमें डोज बढ़ानी पड़ी है। सो बेस लाइन के तौर पे आप उसका टिल नाउ हर फीटल ग्रोथ इज ओके, लेकिन जब उसका अब जाहिर है अगर उसमें कोई सुपर इम्पोज्ड एक्लेम्शिया वाली प्री एक्लेम्शिया वाली बात आ जाती है, या उसमें जैसे with the advancing gestation there could be more rise in the blood pressure which needs more increase in the antihypertensive dose, तो उस सूरत में बेसलाइन डॉपलर का होना जरूरी है। सो यू कैन गो फॉर द सीरियल असेसमेंट ऑफ द फीटल वेलबींग, सीरियल फीटल सर्वेलेंस की तरफ आप उसको इजीली कर सकते हो बिकॉज यू नो द बेसलाइन डॉपलर्स। तो इसकी ज्यादा जस्टिफिकेशन ये है। ठीक मैम, एक बात ये पूछनी थी। डेफिनेटली हाइपरटेंसिव प्रेगनेंसीज में जो है वो एक जनरलाइज्ड वेजोस्पैज्म वाला फैक्टर होते हैं, एंड इफ initially there is no fetal effect, you cannot predict that it will not be affected by the coming weeks of pregnancy. ठीक है, ओके मैम, इनमें यूट्राइन आर्टरी डॉपलर की जस्टिफिकेशन बनती है मैम? क्योंकि इनकी तो आप बताएं आप डॉपलर फ्लो किस चीज का करवाओगे, यूट्राइन आर्टरी का कराओगे या किसी और वेसल का कराओगे? मैम अब तो ये नहीं हो सकता यूट्राइन आर्टरी, अब तो ये 32+3 पे हो गई। तो यूट्राइन आर्टरी का डॉपलर ये जब एनोमली स्कैन इसका हुआ था तब ही हो जाना चाहिए था। जी जी, क्योंकि बेसिकली वो आपको कुछ चीजें प्रिडिक्ट करता है। अब ये तो क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, इसका जेस्टेशन या ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन से सच कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है। अब इसमें जो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर है एट अराउंड द टाइम ऑफ एनोमली स्कैन भी अगर वो आप कर लो तो आपको थोड़ा सा IUGR के बारे में, थोड़ा सा जो सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लेम्शिया के बारे में कुछ नो हाउ पता चल जाता है जी। एट नाउ एट दिस जेस्टेशन देयर इज नो रोल फॉर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। तो अब तो आपने एक्सक्लूसिवली फीटस की सर्कुलेशन को ही असेस करना है, व्हिच मिनिमम वुड बी अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर जी। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप दूसरी वेसल्स को भी असेस कर रहे होते हैं। ठीक है मैम, और एक बात ये पूछनी थी कि एनोमली स्कैन के टाइम पे ही इनका फीटल इको भी हो जाना चाहिए था ना 22 वीक्स पे? वो तो देखो फीटल इको तो नहीं, फीटल कार्डियक एनोमलीज तो हम असेस करते ही हैं ऑन द डिटेल्ड एनोमली स्कैन पे। वो इसीलिए उसको 22 वीक्स पे ले जाते हैं कि उसमें हमें फीटल एनोमलीज का हमने देखना होता है जी। तो ये अगर कोई स्ट्रक्चरल एनोमली हो, अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो ऑफ द एनोमलीज की, कार्डियक एनोमलीज की किसी बच्चे में, और पेशेंट हरसेल्फ इज हैज सम कंजेनिटल कार्डियक डिजीज, तो तब उस सूरत में आप एको करवाते हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं होती।
क्योंकि सीरियल एको हर जगह पे अवेलेबल तो होती नहीं है, तो क्या हर मरीज को उठा के भेजोगे इन द स्पेसिफिक सेंटर्स? नहीं, सही है, तो ओनली इफ देयर इज एनी इंडिकेशन। ठीक है। जी, अब यहाँ तक हमने इन्वेस्टिगेशन इसकी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो जी। अब ये बताइए कि अब आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे? जी मैम, I will keep my patient admitted, will chase her pending investigations reports. I will counsel herself and her family regarding the diagnosis and regarding the condition and her fetal-maternal risk associated with that. That she is having chronic hypertension and pregnancy with chronic hypertension. और फिर I will involve a multidisciplinary team in which I will involve anesthetist, neonatologist and physician. फिर ma'am, I will check her blood pressure 4 hourly. I will continue her अच्छा, एक और antihypertensive. चीज मैं अभी ये जरा आपसे पूछ लूं, ये एग्जामिनेशन से रिलेटेड थी जो मैंने सोचा था आपसे पूछूंगी। जी। रिफ्लेक्सेस आपने इसके क्यों चेक किए? Her blood pressure was 130/80, and what do you expect the reflexes to be? Would it be raised? Ma'am, when I was doing the examination, it was normal, but when she admitted in the hospital, but it was No, raised. I'm talking about your checking of reflexes, deep tendon reflexes at this time while you detected her BP to be 130/80, which is a good control high blood pressure. तो फिर आपने इसके reflexes क्यों check किए? Just to complete the examination, or was there any justification? Ma'am, ma'am, I thought that every hypertensive patient must have her reflexes checked. अगर कंट्रोल ब्लड, अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल हो जाए, बीपी कंट्रोल हो जाए, तो यू कैन नॉट एलिसिट ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस नॉर्मली होते हैं। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी तब होती है जब हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड हो। तो ये न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी को बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए रिफ्लेक्सेस चेक होते हैं, और इससे जो है वो थोड़ा सा सीएनएस और ये सारे इफेक्ट्स न्यूरोनल जो हैं इसके इफेक्ट्स वो हमें पता चल जाते हैं। बट इन अ वेल कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर you need not to check reflexes, and you can give a valid reason for that, that as her BP is controlled, so there is no need to check the deep tendon reflexes because these will be normal. इसमें वो एक्साइटेबिलिटी नहीं रहती तो जिससे उनका ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट हम कर सके। ओके मैम। पेशेंट को ऐसे ही फिर खामखा एक इनकन्वीनियंट एग्जामिनेशन में तो नहीं डालना चाहिए, और ना ही अपने आप को। जब मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं जी, ठीक है, तो वन बाय वन मुझे बताती जाएं आप इसको कैसे करेंगे। एक तो आपने बताया कि यू विल कीप हर एडमिटेड। जी। क्यों? मैम कंट्रोल नाउ। हाँ, फॉर मैम ये बताया उसके ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल है, और जो बाकी आपने अल्ट्रासाउंड और सारे टेस्ट करवाए जो उसके हिसाब से आप देख लें। और दूसरा ये कि अभी ये 32 वीक्स पे है, तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कीपिंग हर एडमिटेड नाउ? जी मैम, इसलिए कि अभी ही उसका जस्ट नाउ हर ब्लड प्रेशर हैज बीन सेटल्ड, सो आई विल कीप हर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, and up till that time I will chase her all reports, and if all biochemistry will be normal and her blood pressure remains controlled on this raised dose of Aldomet, and her complaints has been settled like headache and dizziness, then I will discharge her and will counsel her. At this time now today she has headache and dizziness? नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं था मैम, जब आई थी तब था। हाँ तो ठीक है, वो तो एडमिशन के टाइम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो अब आज के दिन से जब आपने एग्जामिनेशन किया हम उसके ऑनवर्ड आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको आपने कहा कि आई विल कीप हर एडमिटेड, तो माय क्वेश्चन वाज दैट व्हाई? मैम, जब तक ये एटलीस्ट 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन एडमिट रखूंगी। And what is your plan of doing
इन 24 आवर्स? इन 24 आवर्स में आपने क्या करना चाहते हो जो इसके लिए आप इसको एडमिटेड रखोगे? बिकॉज यू Okay, हैव टू ma'am. बी वेरी स्पेसिफिक इन ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर मैनेजमेंट. आप इसमें कोई हवाई बात नहीं कर सकते. आप जो भी अपना स्टेप ऑफ मैनेजमेंट बताओगे आप उसकी वजह भी बताओगे. जी, ठीक है. Ma'am, I will frequently check her blood pressure every 4 hourly as her Frequently is urine no protein. word. You have to mention that how many, after how many hours you will keep on checking the blood pressure and why. BP इसका इस वक्त 130/80 है, तो कितने घंटों के बाद इसका जी. ब्लड प्रेशर चेक करते जाओगे? मैम मिनिमम 6 hourly उसका ब्लड प्रेशर चेक करूंगी मैं. मिनिमम. और अच्छा, जी, और आई विल डू हर यूरिन डिपस्टिक ट्वाइस अ डे. यूरिन डिपस्टिक आप और ट्वाइस अ डे करोगे. ओके, ठीक है. और ma'am, I will ask her about the signs and symptoms of imminent eclampsia like headache, dizziness, epigastric pain, flank pain she और doesn't have any swelling. symptoms of that. She doesn't have any symptoms. जी 24 घंटों जी में तो एकदम से तो नहीं डेवलप हो जाएंगे. और हाँ मैम. मीनवाइल आई विल गिव हर डेक्सा कवर आल्सो. okay, 12 milligram dexamethasone IM 12 hours apart. And then, ma'am, her hemoglobin is also low, so I will build up her hemoglobin and try to build it up till 11 grams per deciliter. And as she is and remote how from you will term build and that? हाँ ma'am, as she is remote from term and her condition, her blood pressure is settled and her complaints have been settled, so I will keep her on parenteral iron on alternate days. Total, I have calculated her dose according to Gansoni's formula. It is 6 doses of iron 6 on alternate doses. days. Her hemoglobin is जी 9.5. जी आप इसको 6 डोजेस दोगे. आपने 6 डोजेस कैसे कैलकुलेट की हैं? मैम फॉर्मूले से किए हैं जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन माइनस पेशेंट हीमोग्लोबिन इनटू वेट ऑफ पेशेंट इनटू 2.21 और प्लस 1000. तो कितने मिलीग्राम आयरन निकला उसमें? 1200 राउंड ऑफ करके 1200 निकल रहा था 1200 जी. मिलीग्राम. 1198.9 मिला था. हाँ जी. क्या था? तो मैम 1198.9 हो रहा था. अच्छा, ठीक है, ठीक है. सो दैट तो मेक्स 1200 डोजेस. हाँ जी 6 डोजेज हो गए कि 1200 मिलीग्राम निकल रहा है. तो फिर आयरन मैं इसको ऑल्टर कितना आयरन होता है? जी आयरन के एक इंजेक्शन में कितना आयरन होता है? हाँ मैम, ये वीनोफर में 100 मिलीग्राम का एक एम्प्यूल होता है और 2 एम्प्यूल्स हम एक साथ देते हैं एक डोज के लिए. सो यू उसको डाइल्यूट would give it on alternate days. जी ठीक है. तो ये तकरीबन 3 डोजेस बन जाती हैं इन 1 वीक ऑलमोस्ट. हाँ जी. चलो ठीक है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं. एनीमिया को इसको बाद में फिर डिस्कस करते हैं. व्हाट एल्स? आपने डेक्सा लगा दिया. एनीमिया की करेक्शन के लिए आपने कुछ चीजें कर दी. फिर आपने इसको कहा मैं 24 घंटे के लिए एडमिट करूंगी. उसमें 6 आवरली बीपी और बाकी यूरिन प्रोटीन आपने ट्वाइस अ डे मेजर किया. ठीक है. और फिर मैम इफ एवरीथिंग रिमेन स्टेबल हर सीटीजी, मैं डेली सीटीजी भी कराऊंगी उसका और हर चीज़ सही आती है देन आई विल डिस्चार्ज हर एंड विल एजुकेट हर अबाउट द ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कंप्लायंस ऑफ मेडिकेशन एंड हेमेटिनिक्स. मैं उसको दूंगी. आई विल गिव हर हेमेटिनिक्स फॉर होम और फिर आई विल काउंसल हर अबाउट साइन एंड आपने सिम्टम्स इसको ऑफ 6 डोजेस दे दी आयरन की. तो अब हिमेटेनिक्स को आप कौन से दोगे इसको? और 6 डोजेस जो हैं वो आपने उसके लिए आपके पेशेंट को हर अल्टरनेट डे पे कॉल करोगे या क्या करोगे? Because these are the practical aspects of management which you have to give due consideration. From where the patient has come, what is her compliance level? If she can come back easily, only then you will allow her to be discharged. अब ये वो चीजें हैं जिसके बेस पे आपने इसका एडमिशन कीप हर एडमिटेड को जस्टिफाई करना है या नहीं करना. ये आप इन चीजों के ऊपर बेस करोगे कि आपने अगर इसको पैरेंटल आयरन देनी है. अगरचे अभी ये 32 वीक्स पे है और इसमें इसको पैरेंटल आयरन अगर हम दे भी दें तो उसमें क्या ओरल आयरन के हिसाब से जो है वो चीजें आपने कैसे जस्टिफाई की पैरेंटल. दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन.
कि आप इसको ओरल आयरन क्यों नहीं दे रहे, पैरेंटल आयरन क्यों दे रहे हो, और ये भी चीजें उसके बहुत सारे उसके बेसिकली प्रोफाइल पे बेस करेंगे। सो यू हैव टू टेल मी कि ये जो आपने 6 डोजेस देनी है आप पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बाद दोगे, एक तो चलो डिस्चार्ज से पहले लग गई, व्हाट अबाउट द 5 अदर डोजेस, और फिर उसके बाद आपने इसको कितने वीकली कॉल करना है, एंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग द थिंग्स एट ईच विजिट। और इसको बहुत जल्दी आप अगर सिस्टमैटिक तरीके से बताते जाओ तो इट डजंट टेक लॉन्ग, नॉट मोर देन फ्यू मिनट्स ओनली। ये पेशेंट इस वक्त है, मैंने इसका ये करना है, अब मैं इसको घर कब भेजूंगी, घर भेजने के बाद इसको कितने अरसे के बाद बुलाना है, और हर विजिट पे मेरा मैनेजमेंट प्लान या उसका जो विजिट प्लान होगा उस पे क्या क्या चीजें शामिल होंगी। ऑल यू हैव टू टेल वेरी ब्रीफली। जी मैम, मैं टोटल प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी होती है, इसको कितना रैपिडली आपने बताना होता है, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम ड्यूरिंग एग्जाम। आपका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है, ठीक है जी। अब मुझे आप बताओ कि आप इसको ये सारा चीजें आप कैसे इसको मैनेज करोगे। मैम मैं उसको आई विल नॉट गिव हर 6 doses as it will be difficult for her to come on alternate days to hospital to take the dose, so I will give her 2 doses, one today and one day after tomorrow, और फिर I will keep switch her to the oral medication ferrous sulfate BID for until her she delivers and after the यानी delivery आप also। इसको सिर्फ 2 डोजेज अभी दे दोगे और बाकी आप इसको फिर ओरल आयरन पे लेके जाओगे। जी मैम, क्योंकि शी हैड इनफ टाइम फॉर टिल डिलीवरी, 32 वीक से अभी 38 तक टाइम है उसके पास। और फिर मैं उसको आई विल encourage her for compliance and as well as blood pressure monitoring and anti-hypertensive compliance along with this anti-hematinics compliance। और फिर मैम आप आई सिर्फ विल मुझे पहले बेसिक ये चीज बता दें कि आपकी मरीज कंप्लायंट है या नहीं है और कहाँ से आई है, क्या दूर से आई है या करीब से आई है। ये मैम एरिया इसका था वैसे मैम कंप्लाइंट है, अब जब से उसकी ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ स्टार्ट हुई हैं शी इज़ टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली। और सरजानी टाउन से आई थी सिविल हॉस्पिटल, तो मैम दूर है, हॉस्पिटल दूर है उसके घर से। मैडम शी लिव्स एट अ फार अवे डिस्टेंस। जी अच्छा, जहाँ से आना इसके लिए मुश्किल है। मुश्किल है, हाँ जी मैम। और दूसरा मैं फिर उसको लेकिन आई मस्ट एजुकेट हर दैट शी नीड्स रेगुलर फॉलोअप विजिट्स ऑन वीकली इंटरवल। In every weekly interval, I will do her. आपने इसको वीकली बुलाया? जी मैम वीकली बुलाया है। वीकली कैसे आएगी वो? अगर उसका आना मुश्किल है तो दूर से आती है तो हर हफ्ते बाद उसका आना कैसे पॉसिबल होगा? और अगर if she can do her blood pressure monitoring at home daily, so I will tell her to come twice weekly, at least आप twice इसका weekly। और आसान सा हल क्या तलाश कर सकती हैं सो दैट पेशेंट यू कैन मेक द पेशेंट मोर कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। देखो बात आती है कि आपने वो चीज एडवाइस करनी है जिसको पेशेंट आसानी से कैरी कर सके, उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं बनानी होती आपने मैनेजमेंट के लिए। और अगर हमें लगे कि ये बहुत क्रूशियल है कि इसका एडमिशन हमने करना ही करना है क्योंकि ये घर जाके मजीद वर्सन हो सकती है, तो फिर तो आप उसका एडमिशन जस्टिफाई कर सकते हो। बट इन दिस केस एज इट इज अ केस कंट्रोल्ड केस, तो इसमें घर तो भेजी जा सकती है, बट हाउ व्हाट एडवाइसेस यू कैन गिव टू हर कि जिसमें उसके लिए ये चीजें कैरी करना आसान हो जाए, because your management should revolve around the comfort of patient if it doesn't interfere with the final management of patient. Ma'am, I will advise her to be vigilant about the fetal monitoring, movement, abdominal girth, and any pervaginal bleeding or discharge. And she should she should be vigilant about her fetal movements. And Yes, you will educate the patient about the warning symptoms of uncontrolled hypertension. जी ठीक है, ये भी। और दूसरी चीज ये कि उसको ये बताओ कि वो घर के करीब कहीं से ब्लड प्रेशर, अगर फर्स्ट के उसके घर पे चेक करने वाली चीज नहीं है, हर एक के घर में बीपी अपडेटस नहीं होता, खासतौर पे जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं तो वो घर के करीब किसी जगह से अपना ब्लड प्रेशर कर ले। आपने उसको टारगेट लेवल बताने हैं कि इतना ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो फिर आप उसको आपने हॉस्पिटल आना है। अदरवाइज कंफर्टेबली यू कैन कॉल हर आफ्टर अनदर 2 वीक्स, ठीक है। और 2 वीक्स टाइम पीरियड में एज हर प्रोटीन यूरिया इज 2+ with which you are not comfortable at all,
ठीक है। जी। अब प्रोटीन यूरिया 2+ कैन बी अ फॉल्स पॉजिटिव रीडिंग एज वेल ड्यू टू सर्टन, मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जिससे प्रोटीन यूरिया फॉल्सली बढ़ जाता है। ये आपको पता होने चाहिए। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग फिजिकल एक्सर्शन अगर वो हो तो उसमें भी प्रोटीन यूरिया बढ़ जाएगा। इवन टेकिंग हाई डोजेज ऑफ विटामिन सी कैन इंक्रीज द प्रोटीन यूरिया। और इसके अलावा इफ देयर इज इट इज मिक्सिंग विद द वेजाइनल डिस्चार्ज तो प्रोटीन यूरिया इसमें फॉल्सली पॉजिटिव आ सकता है। So, basically, a specific quantification is always required in these cases. जो कि 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन तो मतलब अगर नहीं भी हुआ, बात जगह तो ये ही होता है, लेकिन अगर फर्ज किया वो इतना कन्वीनियंट ना हो तो देन यू हैव a better alternative of protein creatinine ratio in the urine. इसके साथ आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो। तो वो सारा कुछ आप कर करा के उसको भेजोगे। And if she is having protein urea 2+, तो फिर उसमें कम से कम आपने जब तक ही आपने 2 times in 24 hours आपने कर लिया। और अगर ये persistent नहीं है, यानी ये ऑफ एंड ऑन कभी होता है कभी नहीं होता, तो इसका मतलब है वेरिएबल फैक्टर ज्यादा है। बट इफ इट इज persistent, then you have to be more vigilant about the renal functions. तो renal function and लिवर फंक्शन टेस्ट को अगर हम एज्यूम करते हैं अभी कि सब कुछ सही है, तभी हम उसको घर भेज रहे हैं। लेकिन फिर उसमें मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया कम से कम ये फिर ट्वाइस अ वीक होगा, और बाद दफा इससे भी अर्ली अगर ये परसिस्ट करता है या इससे भी ज्यादा आता है। एज वेल एज रीनल फंक्शन टेस्ट ऑन वीकली बेसिस, ये आपने फिर करवाने हैं। और ये पेशेंट घर जाके कैसे करेगा, ये आपको पूरा एक रिटर्न डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा। और अगर वो ये सारी चीजें नहीं मैनेज कर सकती तो फिर आप उसको कंसिडरिंग इट एज अ हाई रिस्क, बिकॉज नाउ शी विल एंटर इनटू द डेफिनेशन ऑफ प्री एक्लैम्सिया। अगर ये प्रोटीन यूरिया उसका परसिस्ट करता है, इफ इट इज रियली एट 2+ प्रोटीन यूरिया, या उसकी प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो ज्यादा आ जाती है, तो प्री एक्लैम्सिया वाला पेशेंट लिविंग फार अवे आप उसको फिर घर नहीं भेजोगे। नाउ देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर कीपिंग हर एडमिटेड इन द वार्ड। ठीक है, तो इसलिए इस तरह आपने चीजों को थोड़ा सा जो है वो स्ट्रीमलाइन करना है। आपने हर अपने एक्शन की वजह बतानी है कि ये मैं क्यों कर रही हूँ। अब एग्जामिनर की मर्जी होती है कि वो आपको उसके किसी मैनेजमेंट के किसी भी सेगमेंट की तरफ ले जाए। लाइक जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन यूरिया 2+ है और ये परसिस्टेंटली 2+ आ रहा है, तो ये तो फिर प्री एक्लैम्सिया, सुपर इम्पोज्ड प्री एक्लैम्सिया हो गया ना, क्योंकि प्री एक्लैम्सिया में हाइपरटेंशन होती है और उसके साथ कोई भी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, नॉट नेसेसरीली प्रोटीन यूरिया। लेकिन अगर प्रोटीन यूरिया है तो वो एक रीनल सिस्टम तो इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए वो फिर प्री एक्लैम्सिया में आ जाएगा। और प्री एक्लैम्सिया का फिर अपना एक प्रोटोकॉल ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसमें आपने उसमें सर्वेलेंस बढ़ जाती है, मैटरनल एंड फीटल बोथ। और उसमें एक स्टेज पे आके फिर हमें उसको, अगर जो प्रोटीन यूरिया पे खाली पे हम नहीं डिपेंड करते उसका डिलीवरी टाइम, वो डिपेंड करता है फीटल स्टेटस पे, फीटल असेसमेंट पे। लेकिन उसमें फिर मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन यूरिया विल बी मैंडेटरी एंड समटाइम्स इवन ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे घर जाके मरीज कैसे कराएगी, उस सूरत में फिर आपको मरीज को रखना पड़ेगा। एंड सपोज प्रोटीन यूरिया जो है वो उसका नहीं आता, उस पे जो आपने स्पेसिफिक टेस्ट करवाए उसकी क्वांटिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, तो फिर उस सूरत में आप उसको घर भेज सकते हो विद ऑल द एजुकेशन अबाउट द वार्निंग सिम्टम्स एंड साइंस। और उसके साथ साथ ये भी एक तो एजुकेट करना है आपने इसको, और दूसरी चीज ये कि घर जाके उसने करना क्या है, तो वो सारी चीजें फिर आप उसको बता के घर भेजोगे। ओनली देन यू विल प्ले सेफ बोथ फॉर द पेशेंट एंड फॉर योरसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए अब इसमें ये तो हो गया इसका कि आपने इसको सारी चीजें ठीक चल रही हैं तो आपने उसको 2 वीकली बुला लिया। अब इसमें फीटल सर्वेलेंस की बात जो है वो हमने अभी तक नहीं की। आपने डेली सीटीजी की टिल द टाइम शी इज एडमिटेड, और इसके अलावा क्या मैम फिर 2 to 3 वीकली में तो फिर मैम इसका बायोफिजिकल प्रोफाइल के साथ बुलाऊंगी मैं इसको जब ये विजिट्स पे आएगी। 2 वीकली कम से कम उसमें अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होगा। क्रोस स्कैन जी। हाइपरटेंशन जब है वो चाहे क्रॉनिक हो या जेस्टेशनल हो, जेस्टेशनल में जरा ज्यादा इफेक्ट होता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन
इट कैन अफेक्ट द फीटल ग्रोथ पैटर्न। और फीटल ग्रोथ पैटर्न नहीं कि ये पहले अर्ली प्रेगनेंसी में ये इफेक्ट हो, बाज दफा ये जाके लेट सेकंड ट्राइमेस्टर और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में भी ये इफेक्ट आ जाता है। So your objective is to detect that changes at an early stage. तो हर 2 हफ्ते के बाद इसका जो है वो आप अल्ट्रासाउंड करवाओगे, जिसमें सारी फीटल बायोमेट्री भी होगी, अमाउंट ऑफ लाइकर भी होगा, बायोफिजिकल प्रोफाइल भी होगा, इसमें डॉक्टर स्टडीज भी होंगी। एंड इफ एनी टाइम यू डिटेक्ट एनी पैरामीटर टू बी अफेक्टेड, तो वो सर्वेलेंस उस हिसाब से मोर फ्रीक्वेंट हो जाएगी, फिर ज्यादा जल्दी हमें उसको करना पड़ेगा डॉक्टर बेस करते हुए, या अगर कोई ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन उसकी आइडेंटिफाई होगी तो उसके हिसाब से भी। ठीक है, इस तरह से आपको लेके चलना है। तो अब इसके बाद हमने इसको डिलीवर कराना है। एट व्हाट टाइम, सपोज एवरीथिंग गोज ओके, बीपी इसका कंट्रोल रहता है, यही 130, 80 या 90 की रेंज में रहता है, तो फिर आपका प्लान क्या है इसका अबाउट हर डिलीवरी? Ma'am, when she comes at 36 weeks, I will discuss the mode of delivery with her and will give the options of vaginal delivery after cesarean section and elective cesarean section. But I will counsel her that due to her history and previous miscarriages, she must go for the elective lower segment cesarean section. और इसके अलावा और क्या वजह है इसमें इलेक्टिव सेक्शन की, और क्या जस्टिफिकेशन होगी? एक तो बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होगी, और प्रीवियस स्कार है मैम ये खुद, और जो है स्कार तो है ही है जी। हाँ, और क्या प्रीवियस स्कार एंड विद क्रॉनिक हाइपरटेंशन, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ये 3-4 रिस्क फैक्टर इकट्ठे हो गए। हाँ जी, ठीक है, और लास्ट बॉर्न चाइल्ड जो है वो इसका 12 इयर्स बैक, 12 years back है जी। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाएं तो फिर आप उसमें जो वेजाइनल डिलीवरी की ट्रायल है दैट विल बी वेरी रिस्की फॉर द फीटस, इसलिए फिर आप इसमें इसको इलेक्टिव सेक्शन की ऑप्शन दोगे। बट एट व्हाट टाइम? At 38 weeks. If the fetal, if everything goes well and fetal-maternal condition is satisfactory, then we will go for till 38 weeks for completed. 38 completed weeks, ठीक है, अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं। Otherwise, sometimes even earlier, if any problem is detected in between this time period, जी, कोई फीटस से रिलेटेड या मैटरनल की कोई वर्सनिंग कंडीशन हो जाती है, वर्सनिंग प्री एक्लेम्पसिया होता है, तो जो है वो उस सूरत में जो है वो हम इसको फिर अर्लियर भी कर सकते हैं। जी। इसके बाद मैम, I will also counsel her regarding the contraception. क्या I will करोगे? ma'am, the best contraception for her, in my opinion, is Implanon or copper intrauterine copper device, or ma'am, both of these she can opt anyone. यानी या तो आप उसको PPIUCD का कहोगे या फिर आप उसको इम्प्लांट का कहोगे, बस ये 2 मेथड्स। Ma'am, I will tell her about every method of contraception, like pills and withdrawal and barrier method, and I will suggest her for the best of her interest, Implanon or copper IUCD is best. और फिर ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये मतलब इसमें कॉन्ट्रासेप्शन की बात आपने करनी है, नियोनेटल केयर की बात करनी है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इसमें इससे रिलेटेड जो है वो डिस्कशन में आ सकती हैं, जस्ट टचिंग दीज एस्पेक्ट्स, उसमें डिटेल डिस्कशन अमूमन नहीं होती। तो इसमें यहाँ पे तो हम अपना केस एंड कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़े से क्वेश्चन, बस 2-3 क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं कि अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वाशराम। डॉक्टर, अभी आपने रिफ्लेक्सिस का बताया है, जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो चेक करना जरूरी नहीं है? नहीं है, जरूरी नहीं है। स्टार्टिंग से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तब? देखो, रिफ्लेक्सिस आप क्यों चेक करते हो हाइपरटेंशन में? ये देखने के लिए कि न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी ड्यू टू रेज्ड ब्लड प्रेशर है या नहीं है। वो सिर्फ अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो, नॉर्मल नॉर्मोटेंसिव पेशेंट में डेमोन्स्ट्रेट वो नहीं हो सकते।
तो जब हमें उसका पता है कि नहीं हो सकते तो फिर आप क्यों उसमें खाम खा एक अपना भी टाइम जाया करोगे, पेशेंट को भी एक खाम खा आप हैमर मारते रहोगे। तो उसमें बेसिकली कोई जस्टिफिकेशन या कोई लॉजिक नहीं उसका होता डेमोन्स्ट्रेट करने का। और अगर फर्ज किया आप क्रोनिक हाइपरटेंशन वाले में या प्री-एक्लेम्पशिया में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने से आपका कोई फेल या पास होने का डिसाइड नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आप एक एविडेंस बेस्ड चीज के मुताबिक चल रहे होते हो। और अगर फर्ज किया आप कर भी लो और एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि ये तो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस है, तो आप कहो कि चूंकि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो नॉर्मल रिफ्लेक्सेस होंगे, ठीक है। लेकिन आप ना करो तो उसको ज्यादा बेहतर जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। दैट विल शो योर प्री-एक्लेम्पशिया वालों में नहीं करेंगे, प्री-एक्लेम्पशिया जो होते हैं पेशेंट उसमें भी नहीं करेंगे। प्री-एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन सब में करते हैं। कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट स्टेबल है, हेडेक उसको नहीं है तो उसमें नहीं करते। अगर अलबत्ता अगर बाज दफा ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर को देख रहे होते हैं लेकिन न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी उसके बगैर भी हो सकती है, उस सूरत में पहला सिम्टम पेशेंट को होगा हेडेक एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। So if despite having normal blood pressure the patient is having headache, do demonstrate it, ठीक है। ओके, थैंक यू। मैम इस पेशेंट में जेवीपी चेक करना चाहिए था और दूसरा ये पूछना है जेवीपी जेवीपी क्यों हम इसमें चेक करते हैं? जेवीपी इंडिकेट्स व्हाट? मैम कार्डियक इन्वॉल्वमेंट, मतलब उस वक्त मैम हमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इन हाइपरटेंसिव पेशेंट मैम। बेसिकली ये थोड़ा सा हमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट का तो बताता है, लेकिन उससे पहले पेशेंट के जो बाकी सिम्टम्स, जेवीपी जो है वो उसमें हाइपरटेंशन में इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं होता, लेकिन एज पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन यस यू कैन डू इट। लेकिन अमूमन सिंपल हाइपरटेंशन के केसेस में जिन पे सबसे पहले तो आप बीपी ही चेक कर रहे होते हो ना, तो बीपी अगर उसका नॉर्मल है तो फिर जेवीपी को चेक करने की कोई जरूरत ऐसी नहीं है। देखो इसमें ये नहीं होता कि अगर एक किताब में लिखा हुआ है कि अब आप नॉर्मली जो एक आम पेशेंट भी होता है उसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आप पूरे का पूरा तो चेक नहीं कर रहे होते, ना ही आप चेस्ट एग्जामिनेशन पूरे का पूरा चेक कर रहे होते हो। लेकिन अगर पेशेंट स्पेसिफिक सिम्टम देता है एज पर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्वमेंट, तो फिर आप वो सिस्टम पूरे का पूरा चेक कर रहे होते हो। तो इसलिए जो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो उसको तो पूरे का पूरा चेक करो, बाकी को जो हम रूटीन में सिर्फ हमने हार्ट साउंड सुन ली तो उस हद तक ठीक है, उसमें फिर पूरे का पूरा डिटेल में उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती। सो इफ अ पेशेंट इज स्टेबल, नॉट गिविंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर सिस्टम and her blood pressure is controlled, there is no need to go into unnecessary detail, वरना फिर उसकी हमें वजह बतानी पड़ेगी कि जेवीपी आपने क्यों चेक किया है और जेवीपी को क्या होता है इन हाइपरटेंशन। तो वो एक गैर जरूरी तौर पे सवालों को फिर आपका सामना करना पड़ता है आपको, तो बेहतर होता है कि वो चीज की तरफ आप जाओ ही ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन जो टाइम ऑफ डिलीवरी है इन क्रॉनिक हाइपरटेंशन या प्री-क्लैम्पशिया इट्स 37 वीक्स एंड इफ यू प्रोलॉन्ग आफ्टर 37 वीक तो इट्स अ म्यूचुअल डिसीजन बिटवीन पेशेंट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। तो मैम दिस पेशेंट हैज मल्टीपल रिस्क फैक्टर, तो विल वी प्रोलॉन्ग टिल 38 वीक्स या 37 पे करना इज द राइट डिसीजन? इसको ये कहा, देखो जो अब वेस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है ना, तो आप 34 वीक्स पे भी वो कहते हैं डिलीवरी रिकमेंड कर देते हैं, बिकॉज देयर नियोनेटल नर्सरीज आर वेरी मच अपडेटेड। हमारी कंट्री में बाज़ दफा टर्म के बच्चे में भी मसले हो जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट नर्सरी केयर फैसिलिटीज, तो यहाँ पे आके हमारी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब इसमें हमारी कंडीशन यही थी कि ये पेशेंट जिसमें सारी फीटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीटस में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मदर का हाइपरटेंशन इज वेल कंट्रोल्ड, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम डिटेक्टेड एज ऑन इन्वेस्टिगेशन, जो हमने डिटेल में सारी करवा ली, तो उसमें 38 वीक्स में कोई मसला नहीं है अनलेस के उसमें कोई एडिशनल कोई कॉम्प्लिकेशन हम आइडेंटिफाई कर लें एट एनी स्टेज इन द प्रेगनेंसी, जो हम बीच में उसकी फीटल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसमें अब फर्ज किया इसकी पिछली, अब बाज़ दफ़ा हमें पिछली ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री पे भी कुछ चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। सपोज इस पेशेंट का सेक्शन होता पहले कोई 4-5 साल पहले
और उसमें सीवियर हाइपरटेंशन या ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसका 36 या 35 वीक्स पे हुआ होता, मे बी वी हैव टू कंसिडर इट अर्लियर, तो वहां पे चीजें थोड़ी सी फर्क हो जाएंगी। बट इफ एवरीथिंग इज गोइंग ओके तो 38 के बाद तो हम अलाउ नहीं करते, क्योंकि 38 के बाद साइलेंट आईयूडीज का रिस्क वैसे भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने इसको हम लेके चले उस, अब वहां तो अगर आप गाइडलाइन पे जाओ तो वहां तो वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल है आप उसको हफ्ते में 2 दफा चेक कर लो बस। हम तो ऐसे नहीं करते, Yes, हम ma'am. तो पेशेंट को कहते हैं डेली चेक करो। और Yes, ma'am. इसके अलावा इवन जो माइल्ड हाइपरटेंशन है वो आप उसको कोई ड्यू कंसिडरेशन नहीं देते, हम तो उसको भी देते हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट का एजुकेशन लेवल बहुत फर्क है। तो हमारे यहाँ की सिचुएशन, हमारी नर्सरी फैसिलिटीज, जो एक जो बर्थ वेट है वो भी उसकी भी जो रेशो या उसका जो ग्राफ है, ये सब चीजें बहुत फर्क है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एज पर देयर गाइड, होता यह है कि हम उनकी कुछ गाइडलाइन को पिक कर लेते हैं, कुछ को नहीं करते। और कुछ गाइडलाइन वो होती हैं जो कुछ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पे चल रही होती हैं कि ये टेस्ट करा लो, ये करा लो, ये करा लो, हम तो उसके एडिशनल भी कुछ करवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन टाइप फर्क है, हमारा डिजीज पैटर्न फर्क है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देती हैं। सो इट इज ऑलवेज बेटर, और जितना आप जेस्टेशन में आगे जाती हो उतनी ही जो है वो आरडीएस का रिस्क भी मिनिमाइज हो जाता है, उतना ही नियोनेटल सर्वाइवल बेहतर हो जाता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। इसलिए जो है वो 38 वीक्स इज अ सेफ टाइम पीरियड फॉर दैट, बट डेफिनेटली वी कैन कंसीडर इट अर्लियर इफ एनी देयर इज एनी नीड एंड इंडिकेशन। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी मैडम, मैम एक क्वेश्चन पूछना है कि ये जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है मैडम, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हमने बेसलाइन डॉपलर कराना है। मैडम अगर ये बिल्कुल ठीक बात है कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन में हम अपनी इन्वेस्टिगेशंस में मांगेंगे बेसलाइन डॉपलर, और मैडम अगर उसके अलावा जो प्री क्लेम्शिया या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है उसमें हमने डॉपलर कराना है, और अगर स्कैन पे सब कराना, देखो उसमें तो मसला ही प्लेसेंटेशन का होता है। व्हाई जेस्टेशनल हाइपरटेंशन अराइज, उसकी पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी इज इन द प्लेसेंटा यूजुअली। जी मैम। ना पैथोलॉजी जब प्लेसेंटा में है तो प्लेसेंटा की फंक्शनिंग को हमने इवेल्युएट करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ठीक है, इसलिए जो है वो फिर उसकी वेस्कुलर पैटर्न को भी स्टडी करना फिर उसमें बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन क्रॉनिक हाइपरटेंशन में पैथोलॉजी इज नॉट इन प्लेसेंटा, पैथोलॉजी इज ओवरऑल इन ऑल वेसल्स। ठीक है, वो वेसल जो प्लेसेंटा को भी सप्लाई कर रही हैं, तो उसमें भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने के चांसेस हैं, एबनॉर्मल डॉपलर के भी उसमें चांसेस हैं। लेकिन जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में द प्राइमरी पैथोलॉजी इज इन प्लेसेंटा, नॉट जनरली। क्रॉनिक हाइपरटेंशन की और बहुत सारी वजह हैं, जबकि जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की रीजन प्लेसेंटा में ही होती है। मैडम जैसे ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज्ड प्री क्लेम्शिया हम इसको कंसिडर करेंगे +2 प्रोटीन यूरिया, फिर हम इसमें डॉपलर करवाएं। या तो +2 प्रोटीन यूरिया की बेस पे, या अगर प्रोटीन यूरिया ना भी होता, इसको कोई और सिम्टम भी होता, लाइक हेडेक, ब्लरिंग ऑफ वीएन भी अगर होता तो भी ये प्री क्लैम्शिया लेबल हो जाता। एपिगैस्ट्रिक पेन होती तो भी ये प्री क्लैम्शिया लेबल हो जाता। और अगर और कुछ ना होता, सिर्फ इसके एलएफटीज इंपेयर होते तो भी ये प्री क्लैम्शिया लेबल हो जाता। So it is not only addition of protein urea is not necessary to label a case as preeclampsia. इसमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम अदर देन किडनीज अगर इन्वॉल्व हो जाए तो भी ये प्रीएक्लैम्शिया ही है। मैडम फिर हम हर हाइपरटेंशन के केस में डॉपलर कराएंगे, मतलब ये क्रॉनिक भी हो जाए, गेस्टेशन भी, प्री क्लेम्शिया लेना ज्यादा बेहतर होता है। मैम अगर नॉर्मल आ जाता है और उसमें उसके बाद हमने एक करवा लिया, उसके बाद वो नॉर्मल आता है, उसके बाद हम स्कैन्स कराते हैं तो वो उसमें सब पैरामीटर्स नॉर्मल आते हैं, तो फिर हमने कितना फ्रीक्वेंटली डॉपलर रिपीट करना होगा? देखो इसमें फिर हम 2 वीकली करवाते हैं, 2 वीकली, और ये 2 वीकली होता है आफ्टर 28 वीक्स। उससे पहले आप बेशक 4 हफ्ते बाद करवा लो, अगर बेस लाइन उसका एनॉमली स्कैन के टाइम पे ठीक आ गया तो। वो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर था, 24 वीक्स पे अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर शुरू हो जाता है, उसके 4 हफ्ते बाद 28 वीक्स आ जाते हैं, उस पर फिर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर कराओ, फिर हर 2-2 हफ्ते के बाद करवाओ। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, उसमें चीजें फर्क हो जाती हैं फिर। तो यू कैन टेक इट टू फ्रॉम 2 वीक्स to 3 वीक्स भी आप ले जा सकते हो। ग्रोथ स्कैन तो वैसे तो बेसिकली
आप इसमें 3 to 4 वीकली आप ग्रोथ स्कैन पे ज्यादा बेहतर असेस कर सकते हैं ग्रोथ पैटर्न। लेकिन जो हाइपरटेंशन है जिसमें ऑफ एंड ऑन एरेटिक हाइपरटेंशन हो जाती है और कंट्रोल कभी पोर कभी ठीक या इस तरह से ऑफ एंड ऑन चल रहा हो पैटर्न, उसमें तो हर 2 हफ्ते बाद जरूर करवाओ। एंड इफ डॉपलर फ्लो इज अफेक्टेड देन समटाइम्स यू हैव टू डू इट ऑन वीकली एंड इवन ट्वाइस अ वीक भी उसमें फ्रीक्वेंसी में भी आपको करवाना पड़ता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द केस टू केस, ये चीजें फर्क हो जाएंगी। मैडम जैसे पेशेंट का try to modify the things according to an individual patient. There is no मैम आपने बताया कि इस पेशेंट में ना क्योंकि उसकी रिसेंट चेंज हुई है डोज, इस वजह से हम डॉपलर करवाएंगे। मैम इस पेशेंट में जो आपने जस्टिफिकेशन बताई वो ये बताई कि क्योंकि रिसेंट चेंज ऑफ डोज हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव का। हाँ, वो तो एक वजह, क्योंकि इससे पहले हुआ नहीं हुआ इसका। और मैम लेकिन शी हैज टू पास। देखो ये बार दफा एग्जामिनर सवाल पूछते हैं कि सारा कुछ ठीक है, फिर क्या आपका ख्याल है कि डॉपलर फ्लो इसमें अफेक्टेड होगा? तो आप ये कह सकते हैं इस केस के हिसाब से अगर हम बात करें कि अब अगर फर्स्ट केस में ना भी राइज होता हाइपरटेंशन का या ना भी इसकी डोज बढ़ानी पड़ती, तो भी आप इसका जवाब ये दे सकते थे कि द हाइपरटेंशन कैन वर्सन विद द एडवांसिंग जेस्टेशन, जो इसका यूजुअल एक पैटर्न होता है। तो उस हिसाब से आई वांट टू हैव अ बेसलाइन टेस्ट। लेकिन इस केस में तो इसकी जस्टिफिकेशन और भी स्ट्रॉन्ग इसलिए थी कि the patient had a rise in blood pressure despite being on antihypertensive drugs, the dose of which had to be increased. तो उसमें डॉपलर फ्लो तो इफेक्ट हो सकता है, इस वजह से आपने उसका बेसलाइन जरूर करवाया। दो द फीटस इज नॉट अफेक्टेड सो फार, क्योंकि अभी तक उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में चल रहा था। सिर्फ 1 हफ्ते से उसका कंट्रोल खराब हुआ, तो 1 हफ्ते में फीटल ग्रोथ तो नहीं अफेक्ट होती unless the uncontrolled hypertension persists for weeks and weeks. ठीक है Ma'am, if the gestation hypertension is well controlled, it is not superimposed with preeclampsia, and all the parameters are normal on the scan, then सॉरी बेटा दोबारा रिपीट करें, आप लोगों की आवाज पता नहीं क्यों आज थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है। हाँ जी बताएं। Ma'am, if the gestation hypertension is well controlled on medication and her first Doppler was normal and all the scan parameters, growth scans are normal, then do we need to repeat Doppler in these cases? नहीं, देखो इसमें तो फिर आप 3 to 4 वीकली भी आप करवा सकते हो। अगर उसमें देखो बेसलाइन आपने करवाना है, बेसलाइन के बाद अगर आपने उसकी रीअसेसमेंट भी करनी है, अगर फर्ज किया बच्चे की ग्रोथ भी ठीक चल रही है, तो फिर भी आप उसको अगर करवा लो तो उसमें मसला कोई नहीं है, मजायका कोई नहीं है। लेकिन अगर फर्ज किया आपका एग्जामिनर देखो आपको एग्जामिनर के माइंडसेट का नहीं पता होता कि वो डॉपलर फ्लो रेगुलरली करवाता है या नहीं करवाता, बट यू विल प्ले मोर सेफ बाय रिपीटिंग इट। चाहे उसकी उस तरह से अर्जेंट नींद है, वो कहो कि ये दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट ऑब्स्टेट्रिक स्कैन, कि हमारे सेटअप में वो डॉपलर फ्लो साथ ही हो जाता है, सो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। और यूजुअली डॉपलर फ्लो हो ही जाता है अल्ट्रासाउंड के साथ, तो इसलिए उसको करवाने में आपकी सेफ्टी ज्यादा है। ठीक है मैम, अगर इस पेशेंट का ब्लड, मैम लास्ट एक सवाल, अगर ज्यादा होता इसका ब्लड प्रेशर, अगर ज्यादा होता, क्योंकि ये तो हमने डायग्नोसिस यही बनाया कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन सुपर इम्पोज प्रीएक्लेम्पशिया, क्योंकि इसको हेडेक डिजीनेस भी हो रही थी, तो मैम अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता तो हम मैग्नीशियम सल्फेट का लोड देते हैं और सब चीजें करते हैं। हाँ, अगर प्रीएक्लेम्पशिया हो, इसका ब्लड प्रेशर दोबारा रेज हो, तो फिर आप उसमें वो दे सकते, मैक्सल्फ की डोज दे दो। ठीक है, अच्छा। और खास तौर पे मैक्सल्फ खास तौर पे उस सूरत में ज्यादा देने की इंडिकेशन बनती है अगर कोई जैसे सीएनएस इन्वॉल्वमेंट लाइक स्वेयर हेडेक है, ब्लरिंग ऑफ विजन है, या फिर एपिगेस्ट्रिक पेन है, या इवन अगर हेल्प सिंड्रोम है, तो उन सारी सूरतों में आपका मैक्सल्फ देना जो है वो ठीक है, जस्टिफाइड है। मैम फिर वेट कर सकते हैं 38 तक आने के, या फिर टर्मिनेट भी करनी पड़ेगी? नहीं, अगर देखो वही बात है ना कि अगर सब चीजें ठीक रहती हैं तो अब अगर ये आपने प्रीएक्लेम्पशिया को सुपर इम्पोज्ड प्रीएक्लेम्पशिया का लेबल लगा दिया उस पेशेंट पे, तो फिर मे बी आपको उससे अर्लियर डिसाइड करना पड़े। अगर ये परसिस्ट करता है प्रोटीन यूरिया 1+2+ के दरमियान, तो यू कैन गो ऑन टिल 36-37 वीक्स। और अगर कोई और सिम्टम्स डेवलप नहीं होते, पहले वक्तों में ये था कि प्रोटीन यूरिया हो गया, उसमें आप रीनल फंक्शन कराते जाओ, प्रोटीन यूरिया की क्वांटिफिकेशन ऑफ एंड ऑन करवा लो, टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट द क्वांटिफिकेशन,
और अगर सब चीजें नॉट एंटर्ड इनटू द डेंजरस लिमिट तो उस पे आप फिर वेट कर सकते हो, लेकिन उस सूरत में फिर कम से कम 37 तक कोशिश करो पहुंचने की, वरना व्हेन एवर इट इज इंडिकेटेड। ठीक है, तो आपने लगा ही दिया इसको, तो अब यहाँ पे ठीक है। मैडम एक चीज पूछनी है कि हम जो अगर कोई एमिनेंट एक्लेम्शिया का केस है और हम उसको मैक्सेल्फ दे देते हैं फॉर 24 आवर्स और उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं, उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स या ओवरऑल बीपी और सब कुछ, और फीटल वेलबींग भी मतलब ठीक है, तो हमने इसको डिलीवर करा। ओ सॉरी मैम, अब ये हाँ जी बताइए। मैम मैं कह रही थी कि अपने एमिनेंट एक्लेम्शिया के केस को मैक्सेल्फ दे दिया है फॉर 24 आवर्स और वो पेशेंट मदर और फीटस दोनों की कंडीशन इंप्रूव हो गई है और पेशेंट 36 वीक्स पे है, तो हमने उसको टर्मिनेट करना है बिकॉज हमने मैक्सेल्फ दे दिए, या हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड? ठीक है, इमिनेंट एक्लेम्शिया मींस के भी एक्लेम्शिया नहीं हुआ, वो फिर प्री एक्लेम्शिया वाली ही कैटेगरी होती है। जी मैम बिल्कुल। In pre-eclampsia, if the things are settled, you cannot wait, you can wait, लेकिन वो आपने फिर असेस करना है फीटल और मैटरनल स्टेटस कि अगर कोई और वर्सनिंग ऑफ सिचुएशन नहीं है, हाइपरटेंशन इज सेटल्ड, द सिम्टम्स आर सेटल्ड और मैक्सेल्फ आपने दे भी दिया, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैग्नीशियम सल्फेट देने के बाद उसको डिलीवर कराना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अलबत्ता एक्लेम्शिया अगर हो गया एक दफा, तो चाहे उसके बाद बीपी कंट्रोल भी हो, सारा कुछ कंट्रोल हो, आपने फिर भी उसकी डिलीवरी करानी है। सो इन प्री एक्लेम्शिया इफ द थिंग्स आर मैनेज्ड सक्सेसफुली यू कैन वेट। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह।